Yeah. So if you have been following my YouTube videos, there we had clearly mentioned on Thursday, previous Thursday, that every dip is what you have to buy in the Nifty before the budget, and we saw what happened. So primary reason for Nifty going up is the placement of the index. So I think we discussed this in the uh, post-budget webinar, but we'll revisit all of those points again. Nifty was at 13,600 something. There were no hopes yet. So it was kind of the Nifty level was kind of a give up level. Like we don't expect anything and the budget speed should just come and go. But market got much more than they expected. And Nifty moved up more than 10% from 13,600 to 15,000 plus levels today intraday. So primary reason for going up, the Nifty going up so much is first thing is the placement of the index. If this Nifty was around 13,700 or 14,700, this move certainly would not have come. So all the events you should just keep in mind when tracking Nifty and when tracking major Nifty stocks is that the placement of the market is very important and events kind of accentuate or build up from that Nifty levels. So we'll just quickly go through what's happening in the global markets. So a reflation trade has begun actually in the global market. We'll go through this uh, point by point. So reflation trade is something you sell bonds and you buy stocks. So the major investment money and the trading money in the global market is the majority of that money is kind of parked in US government treasury. So when there is a selling in bonds and an equivalent buying in the equity market, this is called as reflation trade. So I'll explain this point by point. Then copper and metals are extremely strong, and stronger dollar is due to the weakening of euro. So usually stronger dollar is a threat to the global markets, but currently it has been ignored. It is above 90. Currently it is above 91 as well, but currently it is being ignored. So we'll also discuss this in detail. And GME issue, we'll also discuss this in detail. Most importantly, in Nifty, what you guys should always keep in mind is what drives the Nifty. So financial services is the biggest component in Nifty. So globally, what happens is these uh, global markets which are driven by FIIs. There are very few markets globally which are driven by FIIs. Please understand this. So like Japan, in Japan, most of the traders are local players. Nobody is interested from the, although the market is open, there are no restrictions, but nobody is interested. These big FIIs, the global FIIs, they are not interested in trading Japan because it has been taken over by China as the new export powerhouse. But Chinese market are extremely restricted to FIIs. That's why there is no presence at all FIIs in Chinese market. To some extent, in Hong Kong market they had the presence. But Hello, Amayaji. Sorry ah, to interrupt, but I think slides are not changing. no, which is okay. I Okay, the first slide only. okay. Yeah, okay. Hope I am audible, right? Clearly. Yes, sir. Yeah. So globally, if you must have observed, all of you, all the markets go up and come down in a synchronized way. So it's like recently you must have observed on the Friday,
when Nifty gave a close of 13,600 something. That night only Dow Jones had fallen more than 600 points. So this is all synchronized. And when Monday the budget was good, even the global markets recovered. Now, globally, the MNC and the FII driven trade begins with KOSPI, that is South Korea. Then it South Korea KOSPI market closes at 12 o'clock India time. Then uh, DAX opens at 1:30 India time PM. So after KOSPI, it moves to Nifty, then DAX, and then to US market. So this is the way these 4 5 FII heavy markets work in tandem. Now Nifty is the only index in the world where highest weight is of banks. So these financial services, the word is not directly banks because you have HDFC Limited here. So if you remove HDFC Limited, the biggest sector component of Nifty is banks. Globally, this is not the case. If you go to South Korea, there are companies like Samsung and Hyundai and all that. If you go to Germany, there are a lot of chemical companies, DAX. If you go to Dow Jones, they're all IT related companies. There's just one bank in Dow Jones, that is JP Morgan. That's why bank becomes very important as part of the Nifty direction. Lately, in the lockdown, when the lockdown was imposed, say in March, April, so this IT has come into vogue. So IT index was not that big in terms of weightage, but because everybody was doing work from home, sitting at home, so even work, leisure, everything was happening online. So that's the reason global IT stocks have gone up. And then later you have oil and gas. You have these, you have Reliance actually in oil and gas, and then you have OMCs and other ONGCs, consumer goods. You have a lot of players, automobile. You have a lot of players. So majorly, it's all about these stocks. Just go through them. So the biggest weight in Nifty is HDFC Bank and not Reliance, because although the market cap of Reliance is much bigger than HDFC Bank, but there is some promoter holding. 100 minus promoter holding is the free float, and all the global indices are free float, including Nifty. So Nifty was not a free float index earlier, but as the FIIs started to show interest, Nifty was, or the NSE was forced to convert all their indexes into free float. So HDFC Bank, the promoter of HDFC Bank is HDFC Limited, and HDFC Limited has no promoter. ICICI Bank has no promoter. Then ITC has no promoter. Then if you go down, Larsen has no promoter. So these stocks are extremely heavy from the weightage point of view, and it's front of your eyes. 29th Jan, this is the close, and 5th February, these rates I had entered during the market, 5th February. So it's likely that 3 4 points they would be heavier. Yeah. So this chat window you have opened, Karan. Okay. Sorry for the technical glitch. Yeah. Just click on resume share. Now is it visible? Now is it visible? Vijay, Karan? Okay.
Hope everybody can see the PPT. So just look at these stocks. These stocks are driving the Nifty. So these major counters drive the Nifty up or down. So a Power Grid or a BPCL or a GAIL, NTPC, these stocks don't matter at all from the index point of view. Even pharma, unless they go up 10-15%, it won't matter uh, from the index weight perspective. I mean 10-15% a day. If an HDFC bank goes up 1%, it is equivalent to 10% of other stocks. So this is the way it's in front of you. So the Nifty has gone up almost 10%. Bank Nifty has gone up 16%. And all of these stocks have contributed the way they have. Now, coming to the main topic, what should we do? So, Karan, can we open the live market to discuss? Karan, can we open the browser so that I can discuss the live market? Yeah. So, hope this screen is visible to everyone. So, let's discuss Nifty here. This is a Nifty chart. Everybody can see. Yeah. So, this was the placement of the Nifty on the eve of the budget, that is Friday 29th of Jan. So this is a very simple chart. So if you want to really analyze the Nifty, you need to come out of complicated stuff. So there are a lot of technical analysis is very in depth and lot of parameters are there. But you need to come out of complicated stuff. And what you have to look at very simply is you have to plot Bollinger Bands. Then in the moving averages, you have to plot SMA and EMA, 50 and 20, nothing else, right? This is the placement of the Nifty. And what happens is, this is the daily chart. Whenever the Nifty kind of blasts through this Bollinger, either on the lower or on the upside, right? That time you need to be cautious. So if you have been shorting here, you need to be cautious. If you have been buying here, you need to be cautious. So now 15,000, the level what Nifty has showed today, 15,014. 15,000 according to me is the new 12,000. So their Nifty has to give a close above 15,000 to resume fresh uptrend. So whatever this rally has been, this rally is completely over here. So unless Nifty gives a pretty good close above 15,000, there is no case here for fresh buying. If Nifty gives a close above 15,000,
then even after that, you need to kind of be cautious. So this is a cautiously optimistic scenario here. The major trade has happened here, more than 10% spike in Nifty. So please understand that this budget is the budget for the entire year and not just for February. So euphoric reactions usually last 2 to 3 days, but because this is the age of tremendous liquidity, this has lasted for the entire week. And let's go through the global scenario. This is the reflation trade I was referring to. This is US 10-year bond yield. This is extremely important because all of these trades, all of these parameters drive the global market. So here, when the pandemic first started, that is February, so the bond yield started to crash here, right? And here, the risk on mode has started again. If you see, I was referring to the reflation trade. Yeah. So there is a selling in bonds and corresponding buying in equities. Now, if you look at the date, that is September. So that was the US election. So from that time, US election was in November. So from September, this started to build up, and post November, you have seen massive uptick in the reflation trade. So bonds have been sold off, and that money has been moved to equities. Most importantly, now today's update is that there was a deadlock between Republicans and Democrats on the $1.9 trillion stimulus. Now, Republicans today, there is an update that they have agreed that on the stimulus front, they will allow the new president to take his call. So, there were a lot of optimism in the market from vaccine to various data points. Recently, there was a ADP payroll data. Today, there is non-farm payroll data in US. So all of that data, if it turns out to be positive, this is extremely positive for the global markets. But if the global economy starts to recover, there will certainly be a uh, pause in the stimulus. So currently $1.9 trillion stimulus update has come today. So that news is kind of driving the global markets, including India. So this is the Nifty future you can see here, right? And these are various parameters which you should plot on your trading screen. This is US 10-year yield, S&P VIX. Now S&P VIX is a very important parameter. If this settles above 26, unless till the time this is below 26, there is risk on mode. Like stock markets will continue to go up till this parameter remains below 26. So every dip is supposed to be bought. Then the important parameter is copper. So this is around 8 to 9 year high. So copper is a metal which is used in each and every manufacturing product. If you want to manufacture from pen to a car to an aircraft, everywhere you need copper. From computer, everywhere you need copper. So this has almost doubled from the fall we saw in March. So till this remains about $3 for investors and $3.5 for traders. Every dip is what you should buy. These are some very important parameters you should always keep in mind. Yeah. So this is what I have mentioned here. Now, from the Nifty perspective, this budget related trade
is already over here. Please understand this. Unless Nifty gives the convincing close above 15,000 and stays there for 2 3 days, there is no case for fresh buying, because euphoria usually lasts for 2 to 3 days. This euphoria has lasted for 7 continuous days. And on a daily chart, if you see, major stocks, all kind of become overbought. All of these stocks. If you look at Bank Nifty, this is extremely overbought and euphoric. Now, most important point you have to notice here is, you just check the open of Nifty today. It is 14,000, sorry, open of Nifty today 14,952, and the close is below the open. So this has happened first time since last entire week. So this is a sign of caution. So 15,000, unless the Nifty closes above 15,000 and stays there for 2 to 3 days, there is no case to buy here. If you are an investor, you should start kind of booking profits here at 15,000 and plus levels, and you should wait for pretty good sell-offs. The reason being, we will just analyze the GME issue. If you are aware, this fall in the global markets was led by GME issue. This fall, 14,753, and Nifty fell to 13,634, almost 1,100 points. So this fall was led by GameStop. This is the stock where many of the hedge funds are trapped in shorts. Right? So this stock had gone up from 1717 to more than 400. So there is a community in Reddit. There is a blogging website where, okay, so ये एक important topic है. I'll mix Hindi and English. So ये GME जो issue है, अभी निफ्टी का तो हम लोग का बात हो गया कि भाई 15,000 के ऊपर बंद देना बहुत जरूरी है. 15,000 इज द न्यू 12,000. यहाँ पे आपको कॉशियस हो जाना है, क्योंकि जो निफ्टी का ट्रेड था वो यहाँ पे या यहाँ पे स्टार्ट होके यहाँ खत्म हो चुका है. जो बजट रिलेटेड ट्रेड था, जिसमें आप फंडामेंटल भी आप देख सकते हैं और यूफोरिया भी देख सकते हैं. ये देख लीजिए, एक फंडामेंटल यहाँ पे मूव था कि भाई बजट से कोई एक्सपेक्टेशन था नहीं और बजट स्पीच बस शुरू हो जावे और बजट स्पीच खत्म हो जावे. यही मार्केट जो है प्रे कर रहे थे कि आप कुछ मत बोलिए, विल बी हैप्पी. लेकिन उन लोग ने पॉजिटिव भी काफी बात की है. तो ये एक 2 दिन का यूजुअली मूव होता है. तो यहाँ पे देखिए आप 14,700 के आसपास यहाँ पे एक लिमिट आ जाना चाहिए. 14,647 का ये बंद था. हम लोग का बजट का जो वेबिनार हुआ था
वो 2 तारीख को शाम में हुआ था। वहां हमने क्लियरली कहा था कि 200 से 300 पॉइंट और यहाँ से दिखता है। वो हिसाब से 200 से 300 पॉइंट यहाँ पे आ गया, राइट। 647 का बंद था और 924 का क्लोज है, तो 300 पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो बजट रिलेटेड जो ट्रेड था वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, ये बात आप समझ लीजिए। अनलेस निफ्टी 15,000 के ऊपर बंद दे, कोई हम लोग को फ्रेश लॉन्ग करना नहीं है। 15,000 के ऊपर भी बंद देता है तो 2-3 दिन हमको वेट करना है, उसके बाद ही फ्रेश लॉन्ग का बात करना है, क्योंकि एक सेल ऑफ जरूर आएगा। अभी इसके पीछे रीजन है ये गेम स्टॉक का। ये एक ग्लोबल लेवल पे गेम हो रहा है। स्टॉक आप देख लीजिए, 18 से यहाँ पे हाई दिखा रहेगा 483। 18 से 20 बिलियन डॉलर का इसमें M2M लॉस हो गया था। हेज फंड्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट 40 से 50 बिलियन लॉस कर चुके हैं टेस्ला में। ये सब जो है, इसके अंदर इलॉन मस्क जो है उन्होंने एंट्री ले लिया है हेज फंड्स को लॉस करवाने में। और हेज फंड्स का एक्चुअल जो रियल स्टॉक्स होते हैं, अच्छे स्टॉक्स होते हैं, उसमें इनका इन्वेस्टमेंट होता है, जिसको इन लोग प्लेज करके शॉर्ट्स करते हैं छोटे मोटे स्टॉक्स को, एंड दे ट्राई टू बेनिफिट फ्रॉम दैट शॉर्ट्स। तो इलॉन मस्क जो है वो इसमें अभी प्रॉपरली एंट्री ले रहे हैं। आई एम बिकम द मीम डिस्ट्रॉयर ऑफ शॉर्ट्स, ये सब धीरे धीरे उसमें वो एंट्री ले रहा है। कल इन्होंने एक जो डॉजे कॉइन है, DOGE, यहाँ पे देखिए आप, क्रिप्टो करेंसी जो है, इसमें इन्होंने अपना ओपिनियन देना चालू किया है और ये सब भागते जा रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है GME के इशू में। अनलेस ये इशू, अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये इशू कुछ हद तक ठंडा हो गया है, लेकिन अगर आप पैरामीटर्स देखें, ये देखिए, हाँ, गेम स्टॉक में जो शॉर्ट इंटरेस्ट है अभी भी 3 बिलियन का है, और शॉर्ट सेलर्स आर डाउन ऑलमोस्ट 8.83, क्लोज टू 9 बिलियन डॉलर स्टिल डेट। इन लोग 17-18 में 20 में शॉर्ट करके बैठे हैं। भले ये 480 का ₹50 हो गया है, फिर भी इन लोग के भाव से अभी भी $30 ये अप है। तो ये जो इशू है, इसको कंप्लीटली इट हैज टू डाई डाउन, नहीं तो एक टांगती तलवार रहेगी मार्केट के ऊपर। सो जो बजट यूफोरिया था, ग्लोबल लेवल पे जो यूफोरिया था, वो यहाँ पे आके खत्म होता है। और आप अगर यूके की बात करें, फ्रांस की बात करें, वहाँ पे अभी भी सिचुएशन बहुत खराब है। यहाँ पे देखिए, फ्रेंच हॉस्पिटल फेडरेशन प्रेसिडेंट कॉल्स फॉर अ न्यू कोविड लॉकडाउन। जर्मन गवर्नमेंट, ये सब अभी का है, आज का है, 1 घंटा 1.5 घंटा पहले का। जर्मन गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन सेज नंबर ऑफ कोविड डेथ स्टिल शॉकिंगली हाई। और यहाँ ये एक अपडेट है, US सीनेट अप्रूव्स बजट प्लान अलाउइंग डेमोक्रेट्स टू पास 1.9 ट्रिलियन कोविड बिल। सो अगर हम लोग इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की बात करें, जो पूरा निफ्टी आपका चलाए हैं, सो SBI का रिजल्ट काफी शानदार आया। हाँ, तो SBI, ऑल्दो इसका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी 2% है, लेकिन अगर ये चल जाता है, जैसा अभी 39% SBI चल गया है, ऑलमोस्ट 40%, तो वो बैंक निफ्टी को काफी ज्यादा शेकअप कर देता है। और बैंक निफ्टी को आप शेकअप करोगे तो आपका निफ्टी भी शेकअप होगा, क्योंकि इंडिया एक अकेला ऐसा इंडेक्स है निफ्टी पूरी दुनिया में जिसमें बैंक निफ्टी का या बैंक्स का बहुत ज्यादा वेटेज है। तो SBI में यूफोरिक रिएक्शंस हुई है। SBI में ऑलमोस्ट 450-500 के टारगेट्स आए हैं अलग अलग ब्रोकरेजेस की, फ्रॉम मैक्वारी टू CLSA। सो इसमें ये सब टारगेट है 1 साल के, 2 साल के, और ये अभी जो स्टॉक चल गया है आपका 2-3 दिन में ही, समझ रहा है, रिजल्ट वाज वेरी गुड, उसका होराइजन इज वेरी गुड।
तो इसमें स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए है, एआरसी रिलेटेड, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, या बैड बैंक रिलेटेड, उसका भी एक अच्छा अपडेट आया है कि दिस बैड बैंक विल बी फॉर्म बाय द बैंक्स देमसेल्व्स, मतलब कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं रहेगा उसमें। इट विल नॉट बी जस्ट अनदर गवर्नमेंट रेगुलेटर, ना उसमें गवर्नमेंट कोई इक्विटी फंडिंग करेगा, तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट उसमें कुछ नहीं रहेगा। इसके चलते मार्केट उसको चीयर कर रहा है। नहीं तो आपका कोई भी जो अथॉरिटी होता है, कोई भी रेगुलेटर होता है, उसमें जब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो इट लीड्स टू लॉट ऑफ क्लैश ऑफ थिंकिंग, क्योंकि यू आर इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ रेगुलेटर, तो आप कंटिन्यूअसली जो है सामने वाले को पनिश करने का सोचते हैं। एंड इफ यू आर द स्टेक होल्डर एज वेल एज द रेगुलेटर, तो आप एक रिजोल्यूशन करने का सोचते हैं। इसका एक सही सबसे बेस्ट एग्जांपल है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जब बीएससी जो था, जितना भी स्कैंडल्स हुआ है इंडिया में, वो सब बीएससी में हुए हैं। एनएससी में आज तक कोई स्कैंडल नहीं हुआ है। सो फ्रॉम हर्षर मेहता टू केतन पारेख, हर एक स्कैंडल जो हुआ है वो बीएससी में हुआ है। तो नरसिम्हा राव जब हमारे पीएम थे, उन्होंने बैंक्स को ही बोला था कि भाई आप एक अपना खुद का, जिसमें बैंक्स उसके ओनर रहेंगे और बैंक्स उसका मैनेजमेंट सब संभालेंगे, एक खुद का स्टॉक एक्सचेंज बनाइए। तभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया था, जिसमें आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सब उसमें, सेंट्रल बैंक, ये सब उसमें इक्विटी ओनर्स थे। सो ऑन दैट सेम लाइंस, ये जो बैड बैंक है असेट रिकंस्ट्रक्शन वाला, वो ये बैंक्स ही उसको बनाएंगे। तो ये सब न्यूज काफी पॉजिटिव और अच्छे तरीके से जो है एक के बाद आना चालू हो गए हैं। सो बजट के वेबिनार में भी हम लोगों ने बोला था कि हर एक जो बजट है इंडिया में, जब से हम लोग बजट सुनते आ रहे हैं, जो भी वेबिनार के पार्टिसिपेंट्स है, कोई 10 साल से बजट सुन रहा है एज पर रिस्पेक्टिव एज, कोई 20 साल से बजट सुन रहा है, तो हर एक बजट जो हम लोग क्या होता था, वो ऑप्टिमिस्टिक ही होता था और बड़ी बड़ी उसमें बातें होती थी। तो ये टाइम पे बड़ी बड़ी बातें तो हुई है, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें हुई है, लेकिन उससे रिलेटेड इन लोगों ने स्टेप्स भी अनाउंस कर दिए हैं और डेडलाइन के साथ। जैसा एलआईसी आईपीओ आपको आना ही आना है 31 मार्च 2022 के पहले। फिर आपको जो गवर्नमेंट पीएसयूज है, उनका जो लैंड है, एक्सेस लैंड है, बड़े बड़े सिटीज में इन लोग का हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड है, उसको मोनेटाइज करना है, उसका भी डेडलाइन दे दिया गया है। फिर ये जो एआरसी है, असेट रिकंस्ट्रक्शन या बैड बैंक, उसका भी डेडलाइन दे दिया गया है। इसलिए तभी सब पीएसयू बैंक्स और ये सब चल गए हैं। और रिकैपिटलाइजेशन सिर्फ 20,000 करोड़ का है, क्योंकि बैंक्स ही अभी 12 बचे हैं। और जो ओवरऑल जो पॉजिटिविटी है बजट में, वो सब बैंक्स को ही जो है पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगी। इसलिए आप देखें टाटा कंसल्टेंसी सर्विस 1.3% अप, आप देखिए इन्फोसिस 2% अप, क्योंकि बजट रिलेटेड कुछ नहीं था ये स्टॉक्स के लिए। और ये स्टॉक जो है ये ग्लोबल मार्केट में ऑपरेट करते हैं। सो इनिशियली दे वर ओनली एक्सपोज टू यूएस मार्केट, नाउ दे आर एक्सपोज टू यूएस एंड यूरोप ऑलमोस्ट इक्वली। सो देर इज नॉट मच ऑफ ए करेंसी रिस्क। पहले ऐसा था कि भाई यूएस डॉलर ऊपर नीचे हो जाए तो इनके अर्निंग्स जो है पूरे गड़बड़ हो जाते थे, बट नाउ जो डॉलर इंडेक्स है उसको बैलेंस करता है यूरो, पाउंड और येन। तो इन लोग का चारों जगह जो है एक्सपोजर है, तो वो अपने आप आपस में जो है करेंसी एक दूसरे को काट के जो इन लोग का एस्टिमेट है नेट प्रॉफिट का, मार्जिन का, वो अचीव कर देती हैं। सो ये इन्फोसिस और टीसीएस आपके सामने है। ये बजट के चलते ये लोग चले नहीं है, इन लोग ऑलरेडी चल चुके हैं, काफी ज्यादा चल चुके हैं, लाइफ हाई पे सब चल रहे हैं। सो वो ये बजट रिलेटेड था नहीं, आप क्लियर समझ लीजिए। अगर ये ओवरऑल रैली होता था तो ये सब भी स्टॉक चलना जरूरी था। आप देखिए नंबर 3 पे इन्फोसिस आता है फ्रॉम दी वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये नहीं चला है बजट में, 2% चला है। जबकि पूरा हफ्ते में आप देखिए एचडीएफसी बैंक 16% चल गया है, आईसीआईसीआई बैंक तो लाइफ हाई जो है, रोज, कल भी लाइफ हाई था, आज भी लाइफ हाई था। कोटक आपके सामने है क्या हो रहा है। तो ये सब बजट, आईटीसी भी हम लोगों ने क्लियर बोल दिया था बजट के पहले ही कि अगर कोई सिगरेट का कोई मेंशन ही ना हो तो बहुत अच्छा, सिगरेट का मेंशन हो और कोई टैक्स आ जाए तो एक उसमें नेगेटिव बात हो सकती थी, लेकिन देयर वाज नो मेंशन। आप कंट्रोल एफ करके देख लीजिए, कोई सिगरेट टोबैको कोई बात ही नहीं हुआ है। तो बजट इसलिए वेलकम किया गया था मार्केट में कि भाई विदाउट इंक्रीजिंग दी टैक्सेस इन्होंने
एक्सपेंडिचर बढ़ाने का क्लियर बात किया है। सो ये जो बजट रिलेटेड जो स्पाइक है 16% HDFC बैंक, अब देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज भी चला नहीं है, 3% सिर्फ। द रीजन उसके पीछे ये है कि बजट से लेना देना कुछ है था नहीं उसका, एक भी कोई ऐसा चीज नहीं था बजट में जो रिलायंस के लिए था या इंफोसिस के लिए था या TCS के लिए था। इसलिए ये बजट रिलेटेड ही ये स्पाइक था, जो यूजुअली 2-3 दिन होता है। कोई भी जो बड़ा इवेंट होता है, अगर आप मनमोहन सिंह जो जब सरकार सेकेंड टाइम चुन के आया था, तो 2 दिन अपर सर्किट लग गया था स्टॉक मार्केट में। उसके बाद लेकिन वो ग्रेजुअली स्टेबलाइज हो गया था। लेकिन ये बिकॉज ऑफ वी आर इन द एज ऑफ लिक्विडिटी, हम लोग जो है पूरा हफ्ता भर यूफोरिया देख लिए हैं। तो ये बजट रिलेटेड ट्रेड था। जिन लोगों ने ये बजट रिलेटेड ट्रेड में उनका प्लेसमेंट सही था, उन लोग पूरे साल का पैसा जो है ये 7 दिन में कमा लिए हैं। ये जो 16% जो आपको देख रहे हैं रिटर्न, ये एनुअल रिटर्न से भी ज़्यादा है। आज जो रिस्क फ्री रेट है 6-7% का रिस्क फ्री रेट है। बैंक FD तो उससे भी कम है, लेकिन आप अगर प्रोविडेंट फंड और वो सब का बात करें तो 6 और 8 के बीच में रिस्क फ्री रेट है। ये तो उसके डबल है। ये एनुअल रिटर्न आपको एक हफ्ते में मिल गया है। आप समझ रहे हैं बात को? दैट्स वाई 15,000 Nifty, unless it closes above that and remains there for 2-3 days, this is not a time to enter fresh in the market. If you have missed the rally, you better wait for a pretty good fall. The screen has stopped. सो ट्रेडिंग का बेसिक जो होता है, कोई भी ट्रेडिंग का, आपको इंडेक्स में करना है या स्टॉक्स में करना है। कैन यू सी द स्लाइड? या सो कोई भी ट्रेडिंग का बेसिक एक चीज होता है कि दिस इज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। So your view has to go right, your trade initiation has to go right, and your trade exit has to go right. So जो हम लोगों ने निफ्टी का प्लेसमेंट देखा 29 जनवरी को, जो प्लेसमेंट था निफ्टी का, सो वो ऐसा प्लेसमेंट था टेक्निकल लेवल पे, वो एक ब्रेकडाउन था एंड वहां पे लोग शॉर्ट करके गए हैं। एंड उसके बाद डाउ जोन्स आपका 600-700 पॉइंट माइनस में बन दिया है। सो जो लोग शॉर्ट करके गए हैं वो डाउ जोन्स देखने के बाद ओवरनाइट बहुत अच्छा उनको नींद आया, लेकिन अगले दिन हो गया उल्टा। सो आपका व्यू जो है वो सही होना चाहिए, उसके बाद आपका ट्रेड सही होना चाहिए, और उसके बाद आपका एग्जिट सही होना चाहिए। अभी इसमें हम आपको बताते हैं कि ये किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करना है। सो हमारे जो साथी हैं विजय, हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे फ्राइडे के दिन 29 जनवरी को, कि ये यूफोरिक टाइप का जो है फॉल है कि भाई बेच के भागो एंड देयर इज नो फ्यूचर, और बजट में कुछ नहीं है। एंड वी ऑल्सो लुक्ड एट चार्ट एंड वी एक्चुअली बॉट निफ्टी फ्यूचर देयर। सो वो एक हम लोग का ट्रेड व्यू सही गया, ट्रेड इनिशिएशन भी सही गया। अभी एग्जिट का खेल है। सो आइदर यू एग्जिट ऑन द डे ऑफ द बजट, you will still get good money, or you extend that trade till the expiry, that is Thursday. So as and when you guys associate with us, we will kind of continue to guide you on this front. So ये आज के वेबिनार का थीम था कि जो पूरा जो खेल है, कोई भी इवेंट आप देख लीजिए, जैसा आपका RBI का आज देख लीजिए। आज अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें, आज बैंक निफ्टी का जो हाई था, लेट्स गो टू दी yeah, go to the bank nifty. Hope everybody can see. Yeah. तो जो इसका हाई था आज
13,000 36,615 वहां से 1,000 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी नीचे बंद दिया है ऑलमोस्ट। अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है, ये देखिए बैंक निफ्टी, ये है हाई, ये देखिए हाई, लास्ट मतलब लास्ट क्लोज, ओपन, हाई एंड लो। ये देखिए बैंक निफ्टी 36,615। तो जैसा मैं आपको बोला कि ये बजट रिलेटेड जो रियल फंडामेंटल बजट रिलेटेड जो अपसाइड था वो 2 दिन का था। उसके बाद जो आने वाले 3 दिन में अपसाइड देखा गया है टिल टुडे, वो पूरा यूफोरिक था एंड इट वाज वेटिंग फॉर एन इवेंट दैट इज आरबीआई पॉलिसी। तो आरबीआई पॉलिसी में ऐसा कोई बात नहीं था जो इसको और पुश दे सके। तो 1,000 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी हाई से नीचे आके क्लोज दे दिया है। सो अभी आपको मैं जो बोल रहा हूँ उसका ग्रेविटी समझ में आ रहा होगा कि ये जो फंडामेंटल इवेंट होता है वो 2 दिन का होता है, 3 दिन का होता है, लेकिन उसके आगे जो है वो पूरा का पूरा यूफोरिया होता है। और यूफोरिया आज आरबीआई के पॉलिसी में बैंक निफ्टी लेवल पे कोशिश किया है पंक्चर करने का। ये आप चीज समझ लीजिए, 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर से नीचे बन दिया है। सो यूफोरिक मूव्स थे, जिन लोगों ने ये मूव राइड किया है उनको बहुत बहुत बधाई, congratulations to them. People who have missed it, now don't try to enter the market unless you see proper 15,000 plus close, because global level पे things have heated up। अभी कोई भी इवेंट किसी भी तरीके से आ सकता है। तो निफ्टी का जो प्लेसमेंट है उसमें हम लोग फिर से जाते हैं। ये देखिए, बराबर जब पूरा होपलेस सिनेरियो हो जाता है तब न्यूज अपडेट आता है, और जब यूफोरिक सिनेरियो आ जाता है तब बराबर से जो है निगेटिव न्यूज आता है। अभी हम लोग चार्ट्स में अगर देखते हैं, मैक्सिमम अपसाइड इसमें कितना दिखता है निफ्टी में, अगर आपको एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना है या आपको ऑलरेडी आपके पास इन्वेस्टमेंट है उसको बुक करना है। हम लोग पहले वीकली चार्ट में जाते हैं। ये देखिए, सो 265 यू कैन सी इट हियर। सो मैक्सिमम जो है 200 250 पॉइंट यहां से हम लोग को दिखता है। ये जो यूफोरिक मूव था उसकी बात हो रही है। मंथली चार्ट में ये ऑलरेडी उसके आगे निकल चुका है, जो बॉलिंगर बैंड होता है उसके। दीज फिगर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ऑन दी डेली, वीकली एंड मंथली। जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए आवरली और 15 मिनट उनके काम का होता है। समझे आप? सो मैक्सिमम 200 से 250 पॉइंट यहाँ पे हमको दिखता है। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं यहाँ का, 31 अगस्त का आपको एग्जांपल देते हैं। ये देखिए, क्या हो रहा है करण? यू आर ट्राइंग टू चेंज समथिंग? या, सो ये Screen देखिए is not changing, sir. आओ। Wait, sir, is solving that.
Yes, sir. Now screen is able to see. Visible? Yes. तो HDFC बैंक का, इफ यू आर अवेयर, अगर आपने रिसेंटली पढ़ा रहेगा, तो RBI ने एक टेक्निकल ऑडिटर उस पर बिठा दिया है। जो इनका क्रेडिट कार्ड डिवीजन है, उसमें lot of issues they are facing since more than a year, and they have promised RBI, they have committed to RBI that we'll resolve it, लेकिन वो सॉल्व हो नहीं रहा। सो उन्होंने टेक्निकल ऑडिटर एक उस पर बिठा दिया है। अभी तक मार्केट में ये न्यूज यूज नहीं किया गया है उस स्टॉक को गिराने के लिए। तो इस टाइप से जो आप देखें, जो फॉल्स आए हैं, हर एक फॉल में कोई ना कोई रीजन है। अगर आप रिसेंटली देखें, ये जो फॉल था 21 दिसंबर का, फिर ये देखिए 25/11 का, ये सब में आप कोई ना कोई रीजन है। जैसा आपका नैस्डैक का फॉल था, फिर आपका यूके का जो नया स्ट्रेन पकड़ा गया था वो था। अभी आप यूरोप में देखिए, अभी भी लॉकडाउन वहाँ पे कई जगह चल रहे हैं, हो सकता है एक्सटेंड भी हो जाएगा। सो अभी ये जो टाइम है, दिस इज टाइम टू बी कॉशियस, एंड वी वेयर फुल लॉन्ग ऑन दिस डे। हम लोग 26 तारीख को प्रॉपर लॉन्ग थे, एंड वी कैन ऑल्सो शेयर दैट ट्रेड, राइट विजय भाई, कि हम लोगों ने सही Yes, में sir. लॉन्ग किया था और हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है रैली में। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो हियर the time is to remain cautious now, because ICICI बैंक और HDFC बैंक, ये सब में, इंडसइंड बैंक, ये सब में माइक्रो फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, फिर आपका लोन अगेंस्ट शेयर्स, LAP लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये सब बहुत ज़्यादा लेवल पे स्ट्रेस्ड है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, डिसीजन आया था, जिसमें इन्होंने कोविड रिलेटेड जो भी बिजनेसेस फेल हुए हैं, जो भी डिफॉल्ट्स हुए हैं, उसको NPA डिक्लेयर नहीं करने के लिए बोला गया था, सो दैट whoever is facing financial stress, he doesn't kind of face another stress of loan defaults and then court cases and recovery teams visiting his offices and homes. सो कंज्यूमर लोन की बात नहीं हो रही है वहाँ पे, तो घर घर पहुँच गए हैं उन लोग। लेकिन बड़े बड़े जो LAP और LAS हैं, जो मतलब MSMEs लिए हैं, तो ये जो NPA रिलेटेड जो बबल है, ये अभी तक हिडन था। सो ये बराबर जैसा मार्केट का प्लेसमेंट यहाँ पे आ गया है, अभी धीरे धीरे करके इस टाइप के न्यूज आना चालू हो जाएंगे। And historically, if you have observed, Jan, Feb, March are the most dangerous months for the market. फिर वो आप 2008 का 8-9 का लेमन का क्राइसिस ले लीजिए, ऑल्दो लेमन हैपेंड इन सितंबर, लेकिन फ्रेडी माई वो सब जैन में चालू हो गया था। फिर आपका US का टेपर टेंट्रम का बात ले लीजिए, February 2016 का। फिर आप कोरोना का ले लीजिए, ये भी फरवरी मार्च में आया है, और अभी भी जनवरी फरवरी मार्च ही चल रहा है। सो 15,000 के ऊपर अगर निफ्टी बंद देता है, और आपको हमने लेवल दे दिया था 15,265, तो उसको आप राउंड फिगर करके 15,300 कर लीजिए। तो जब तक 15,000 के ऊपर सेटल होके 15,300 के ऊपर बंद नहीं देता है, यहाँ पे जो है आपको फ्रेश बाइंग इनिशिएट नहीं करना है। लेकिन जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं एज अ स्टॉक होल्डर, नॉट इन डेरिवेटिव्स, जो ऑलरेडी स्टॉक होल्डर एज ए स्टॉक होल्डर इन्वेस्टेड हैं, दे कैन कंटिन्यू टू रिमेन इन्वेस्टेड, क्योंकि ये जो लिक्विडिटी है, ग्लोबल लिक्विडिटी का जो फ्लो है, इट इज हियर टू स्टे फॉर मेनी ईयर्स टू कम। आने वाले 4 से 5 साल तक जो है, हमको ऐसा नहीं लगता है कि ये ग्लोबल लिक्विडिटी जो है वो रुकने वाला है। ये जो 0% इंटरेस्ट रेट है US में, और जो भी डेवलप्ड इकोनॉमीज में आप देख लीजिए, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप,
ये 0% इंटरेस्ट और बॉन्ड बाइंग वहां पे हो रहा है। अभी यूएस में $120 बिलियन एवरी मंथ। $1 बिलियन इज 7,200 करोड़। सोच लीजिए आप मल्टीप्लाई करके, एवरी मंथ वहां का सेंट्रल बैंक बॉन्ड्स बाय कर रहा है। वो बॉन्ड्स गवर्नमेंट के भी बाय कर रहा है और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और ऐसे एमएसएमई कॉर्पोरेट्स के भी बाय कर रहा है। मतलब इफ यू नीड मनी यू रेज अ बॉन्ड, सेंड एन एप्लीकेशन, एंड वहां का सेंट्रल बैंक मतलब वहां का आरबीआई वो आपके बॉन्ड खरीद ले रहा है। मतलब आपको लोन मिल गया है इनडायरेक्टली फ्रॉम दी सेंट्रल बैंक थ्रू बॉन्ड मार्केट एट 0% इंटरेस्ट। सो ये जो एक ग्लोबल लिक्विडिटी है, दिस इज गोइंग टू कम, दिस इज गोइंग टू रिमेन फॉर नेक्स्ट 5 years. So please understand, we are in a bull market which will continue for another 5 years. So पोजिशनल बेसिस पे यहाँ कोई खतरा है नहीं, और पोजिशनल बेसिस पे निफ्टी का कोई अपसाइड लेवल भी नहीं है। निफ्टी कैन गो टू, हमने अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पे जाएं तो वहां पे हम लोगों ने एक चीज क्लियरली बोला था। कैन यू शेयर दी, कैन यू गाइस सी द स्क्रीन? Yes, sir. Yes, we can. माय चैनल, यहाँ पे अगर आप वीडियोस में जाके देखें, यहाँ पे हम लोगों ने बोला था, देखिए, बाय एवरी डिप इन निफ्टी। एंड आप अगर हिस्टोरिकली अगर जाके देखें तो हमने क्लियरली बोला है कि इसमें कोई अपसाइड नहीं है निफ्टी में। नो अपसाइड इन निफ्टी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि आप एक फिगर दे सकें। ये जो लिक्विडिटी का इन्फ्लो है ग्लोबल लेवल पे, दिस इज काइंड ऑफ अनलिमिटेड। सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, यूएस में जब कोरोना का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, ऑल दी एयरलाइंस वेयर ग्राउंडेड, एंड वैरेन बुफे, माइंड यू, वैरेन बुफे हैड सेड, आई एम सेलिंग ऑल माय एयरलाइन स्टॉक्स बिकॉज आई सी कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द इंडस्ट्री, और टूरिज्म स्टॉक्स हर चीज वो बेच दिया। और उसके विद इन 2 वीक्स वहां का गवर्नमेंट ने, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो स्टिमुलस लाया है, $21 बिलियन हार्ड कैश was credited into the accounts of various airline and airline related companies to save jobs. So that trade of Warren Buffett also went wrong. आप समझ रहे हैं? So ये जो फॉल आया है कोरोना का, it's in front of you how quickly kind of it got bought. So please understand this. If you are a long term investor, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 5 years, 7 years एंड अहेड, यू आर ऑलवेज इन अ बुल मार्केट। अगर आप ट्रेडर हैं तो ये सब आपके लिए लेवल्स मैटर करते हैं। इफ यू आर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यू आर ऑलवेज इन अ बुल मार्केट। सो इफ यू आर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, इफ देर आर वेरी गुड डिक्लाइंस एज आई एम एक्सपेक्टिंग, अभी ये ओवर हीटेड मार्केट है, बजट का जो एनुअल मूवमेंट होता है वो आपका 3-4 दिन में, 4-5 दिन में आ गया है। So for traders, you need to be extremely cautious at 15,000 near about levels. And from the investor's perspective, every dip is what you should buy and accumulate stocks. And from trading perspective, on a daily basis, we do a lot of trades. We also have designed a lot of uh, quant parameters, which are from the PCR also, that is put call ratio, and various algorithmic levels is what we have designed. So on a daily basis, we do give guidance on index and index heavy stocks. So this is what the session and the webinar is all about. So I think I'm done. So just to, So, if any participants want to ask any question to yeah, Amayaji, they can raise their hand. So our technical person will unmute them, and they can ask question in chat box also.
and impact of budget on various sectors, like which sectors look good as an investment. You can start buying on every dip in the market. I mean, that has been clearly explained in the budget webinar. It is a more than 1 hour video. If you go to that, if you go to my YouTube channel, it has been uploaded. So those participants who were not part of the budget webinar and they have a question in mind कि बजट तो हो गया, लेकिन हम लोगों ने कौन से स्टॉक्स लेना चाहिए, कौन सा सेक्टर की तरफ ध्यान देना चाहिए. So each and every sector which was impacted by the budget positively and negatively have been discussed in the budget webinar which happened on 2nd of February. So वो करण, वो आप YouTube का लिंक उनको दिखा दीजिए. माइंड में अगर होगा कि का तो बात हो गया एंड ऑल दैट, हमको लेना है, फ्रेश डिप्लॉयमेंट करना है, तो कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक की तरफ ध्यान दें. तो प्रीवियस 1.5 घंटे का ऑलमोस्ट वो webinar था, उसमें पर स्टेप बाय स्टेप पॉइंट एक एक सेक्टर को काफी डिटेल में कवर किया गया है. तो ये जो वेबिनार अभी जो हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं, इस अबाउट भाई निफ्टी 15,000 पे आ गया है, अभी क्या करना है. तो इन्वेस्टर को तो कोई डरने का चीज नहीं है, हर एक जो डीप आता है वो आपको बाय करना है. बिकॉज एज आई हैड सेड, ये जो ग्लोबल लिक्विडिटी है ये रुकने वाला है नहीं. ग्लोबल लेवल पे जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है, जो दुनिया चला रहे हैं आज, FII और ये सब इन लोग का ही पैसा है. वही क्रेडिट स्विस है जो हर जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मॉर्गन स्टैनली, सब देर ऑल इन वन. सो इन लोग को फ्री में जो है लोन्स मिल रहे हैं 0% फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स. वहाँ की इंडस्ट्रीज को जो है स्टिमुलस मिल रहा है इन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर एवरी मंथ. जो वहाँ के से उनको जो बिजनेसेस है उनको भी बिलियंस डॉलर का मिल रहा है, एंड दिस विल कंटिन्यू. सो ये निफ्टी का वर्चुअली अगर आप कोई बोले कि आपको कहाँ पे निफ्टी रुकना चाहिए ऐसा लग रहा है, सो फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू इसका तो कोई टॉप ही नहीं है. ये हम लोगों ने, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, आप मेरा नाम टाइप कीजिए, आत्मनिर्भर निफ्टी विद अमेय हरदास. उसमें जो पुराने वीडियोस में आप देखिए, उसमें हम लोगों ने जब निफ्टी 11,000 था, 12,000 था, तब हम लोगों ने क्लियर बोला था कि इसका 15,000 भी जा सकता है, ये 20,000 भी जा सकता है, ये 25,000 भी जा सकता है. तो फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू हर एक जो डिप है वो आपको बाय ही करना है आने वाले 5 साल के लिए. और जो ट्रेडर होता है उसके लिए 15,000 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है. इट हैज टू क्लोज अबाउट 15,000, नहीं तो ट्रेडर बहुत शानदार तरीके से जो है ये मार्केट को शॉर्ट कर सकता है एक क्विक 2-4 दिन का स्कैल्पिंग के लिए या एक हफ्ते का स्कैल्पिंग के लिए, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीक में देखा था किस तरीके से मार्केट क्रैश हुआ है और किस तरीके से ये वीक में मार्केट ऊपर आया है. तो ये सब ट्रेडर लोग का जो है स्कैल्पिंग के हिसाब से हम लोगों ने ये वेबिनार रखा है. बाकी जो इन्वेस्टर्स है, एवरी डिप इज व्हाट यू हैव टू बाय, एंड दिस मार्केट इज गोइंग टू गो अप फॉर नेक्स्ट 5 years एटलीस्ट, कम से कम 5 साल के लिए. और इसका कोई अपसाइड हमको डिफाइन करना ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा. अगर आपके माइंड में कोई चीज होगी कि हाँ भाई हमको लगता है कि 15,500 में निफ्टी रुक जाएगा, इसका कोई टॉप नहीं है. ये यहाँ से 10,000 पॉइंट भी निफ्टी और चल जाएगा, ये आप समझ लीजिए. सो इन फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू एवरी डीप इज अ बाय, and from the traders point of view there are some levels which you should keep in mind. And on a weekly basis I do upload my YouTube videos which I'll upload on Sunday as well. And during the week, if you are registered with us as a client, you can certainly call us and consult us even on Monday mornings कि भाई ये वीक का आपका क्या व्यू है. And based on that, if you are a trader, you can benefit from the research is what we do. Because previous week we did short the market, and this week we did buy the market. So it's like that. And index में I think I'm repeating this point, but ये जो विजय भाई है, इन्होंने काफी मेहनत की है, नए नए पैरामीटर्स इन्होंने
जो है रिसर्च किए हैं, जिसमें एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है पीसीआर रेशो। पीसीआर रेशो और मैं अल्गोरिदम के बेस पे लेवल्स डिजाइन करता हूँ, इसके बेसिस पे ट्रेड्स होते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Amayji. Thank you. And thanks everyone to be attend this. And, थैंक यू। yeah.